So 1 radian is equal to 180 by pi. Clear? Ananya is disconnected. So this imply 11 by 50 radian is equal to 11 by 50 into I am supposed to find degree measure. So कैसे करेंगे? Into किससे multiply करेंगे? 180 by pi radian. Clear class? See this step again. This is in radian and I am supposed to find the degree measure. So degree radian to degree कैसे आते हैं? 1c. C stands for radian. 1 radian is equal to 180 by pi degree. So 11 by 50 radian is equal to 11 by 50 into 1 by 180 divided by pi radian. Clear? So use pi is equal to 22 by 7. So करेंगे calculation. See, 11 by theta is equal to 11 by 50 into 180 divided by क्या होगा? 22 by 7. So this is 11 by 50 into 180 divide का multiply बनाओगे term reciprocal हो जाएगी. 22 by 7 becomes 7 by 22. So 11 ones are 11 2, 2 ones are 90, 0, 5 ones are. So this is 0 and 0 cancel out. 9 into 7, 63 by 5. क्या आ गया? Degree. 63 by 5 degree. Clear? Now class, convert 63 by 5 into mixed fraction is equal to 5 12s are 60, 3 is left off. So that means theta is equal to 12 degree plus 3 by 5 degree. Clear? अब next degree का क्या बनाना है? Minutes. So 1 degree is equal to 60 minutes. Clear? So theta is equal to 12 degree into क्या आएगा? Plus 3 by 5 डिग्री से मिनट बनाने हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं इनटू क्या आ गया 60 मिनट 5 1s are 5 12s are. So this is theta is equal to 12 degree 12 into 3 36 minutes. This is the answer of this question. That is theta is equal to 12 degree 36 minutes. Class again जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो देख लें. थीटा इज इक्वल टू L बाई आर. बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास. थीटा इज द एंगल. सपोज दिस इज द सर्कल, दिस इज द आर्क AB. It subtends angle theta at the center. So theta is the angle subtended by the arc at the center. L is the length of the arc. This length इसको क्या बोलेंगे क्लास? This is called L. That is length of the arc. R is the radius of the circle. But this formula deals with radian. Clear? ये formula always किसमें calculate किया गया था? Radian में. Clear? So any doubt regarding this question class? समझ में आ गया? ध्यान से देखो इसको. लास्ट के 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. Let us move to the next question. So next is question is in a circle of diameter 40, in a circle of diameter 40 centimeter. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. The length of the chord is, ये भी important है class. Length of the chord is 20 centimeter. Clear? Find the length of the minor arc of the chord. Find the length of the minor arc. Minor arc of the chord. Class, first try to understand the question. Situation क्या है? This is the circle. This is the chord. Clear? In a circle of diameter 40. So radius कितना आएगा? Radius is 20 centimeter. Radius is 20 centimeter. This is O and this is chord AB. Length of the chord AB is 20. So this is also
20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. ये लेंथ आपने क्या करनी है क्लास, ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, दैट इज ए बी. एल यू आर सपोज टू फाइंड आउट. क्लियर? एल यू आर सपोज टू फाइंड आउट. सो क्लास डायमीटर इज 40. क्लियर कट है, रेडियस कितना होगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर? लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी कितनी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो कैन आई से इन दिस ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर 20. दो आगे रेडियस है 20 and third chord is also 20. So this becomes an equilateral triangle. Clear? So what is the measure of this angle? Kanan, what is the measure? 60 कितना होगा ये? कितनी डिग्री? 60. Because equilateral triangle, all the angles are equal and each angle is equal to 60 degree. Clear? So theta कितना आ गया class? 60 degree. What is R here? That is 20 सेंटीमीटर. क्लियर? R is 20 सेंटीमीटर. सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर? इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन. क्यों किया क्लास, मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. आई एम सपोज टू यूज दिस फार्मूला. क्लियर? थीटा है मेरे पास, रेडियस है, एल में कैलकुलेट करूंगा, बट दिस फार्मूला वर्क्स इन रेडियन. ये फार्मूला किस में चलता है, रेडियन में. क्लियर? एंड हियर इट इज डिग्री. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. 61 जा 63. सो दिस इज पाई बाई 3 रेडियन. सो थीटा कितना हो गया आपका, पाई बाई 3 रेडियन. क्लियर? व्हाट इज आर, दैट इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर? आगे यूज करो. we know that theta is equal to L by R. क्लास आज कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मींस L कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर L? L इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो थीटा इनटू R. क्लियर? अप्लाई द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज पाई बाई 3, R is 20 multiplied by 20. So this is 20 pi by 3, that is L. L is 20 pi by 3 centimeter. So L is equal to 20 pi by 3 centimeter. Any difficulty class, any doubt? So दोबारा देखेंगे क्लास. Diameter 40, so radius is 20. Length of the chord is 20. So this becomes an equilateral triangle. So angle is 60 degree. तो थीटा कितना आ गया, 60 degree. Clear? So class theta is equal to 60 degree and I have to use the formula theta is equal to L by R. L कैलकुलेट करना है, L is equal to theta by R. थीटा 60 डिग्री में है. दिस फार्मूला वर्क्स इन रेडियन. सो 60 डिग्री को कन्वर्ट किया किसमें, रेडियन में. मल्टीप्लाई बाई, डिग्री टू रेडियन आना हो तो पाई बाई 180 से क्या करते हैं क्लास, मल्टीप्लाई. सो 60 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन. वैल्यू लगाई थीटा की, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन इनटू R इज 20. सो दिस इज 20 इनटू पाई, दैट इज 20 पाई बाई 3 इज द आंसर. Any difficulty, any doubt from your side? Is it clear class? Excuse me, sir. Okay. Let Excuse us me, move to the sir. next question. Next भी important है, ध्यान से देखेंगे. If in two circles, if in two circles of arcs of the same length, arcs of the same length, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ. ठीक है. सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर, subtends angles at the center 60 degree and 75 degree respectively. ठीक है. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Class, first
try to understand what is given, ठीक है, and what is supposed to be calculated, ठीक है. पहले देखना है what is provided in the question. If in two circles, so first draw two circles. This is the first circle, this is the second circle. If in two circles, so subtend angles at the center, ये आ गया center. This is the what we call center. Subtend angles at the center as 60 degree. So first circle में angle center पे कितना बना? That is 60 degree. Second circle में angle कितना बना? That is 75 degree. Arcs of the same length, class, that means this arc, ठीक है, is equal to this arc. Arcs of the same length का मतलब हो गया if it is 2 centimeter, ये भी कितनी होगी 2. आर्क को कैसे डिनोट करते हैं? L. So ये भी कितना आएगा क्लास? L. Because सेम लेंथ है. L1 L2 नहीं करेंगे because दोनों की लेंथ क्या है? सेम. Find the ratio of their radii. Suppose this is R1 and this is R2. कैलकुलेट क्या करना है क्लास? सच R1 डिवाइडेड बाई R2 कैलकुलेट करना है. What is their ratio? क्लियर? समझ में आ गया क्लास? So कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा 1 ये आ गया आपका. थीटा 1 कितना आ गया? 60 डिग्री. थीटा 2 कितना आ गया? दैट इज 72 डिग्री. ठीक है. सो थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगेन क्लास मुझे फॉर्मूला यूज करना है. थीटा इज इक्वल टू L बाई आर. बट प्रॉब्लम इज दिस फॉर्मूला वर्क्स इन रेडियन. ठीक है. सो ये किस में है? डिग्री में. सो ये किस में कन्वर्ट करेंगे? 60 इंटू पाई बाई 180. ठीक है. डिग्री टू रेडियन जाना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. 63 सो दिस इज पाई बाई 3 रेडियन. थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन. क्लियर? समझ में आ गया? अब कन्वर्ट करो किसको? थीटा 2 को. थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री टू रेडियन जाना हो पाई बाई 180 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करो. कटिंग 5 15 5 36. ठीक है. सो दिस इज 3 5 3 12. सो दिस इज 5 पाई बाई 12. थीटा 2 आ गया 5 पाई बाई 12. क्लियर? समझ में आ गया क्लास? नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करेंगे क्लास. दोनों का क्या निकालना है? वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L बाई आर. सो यहां भी क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू L बाई आर. फर्स्ट केस में थीटा 1 R1, सेकेंड केस में थीटा 2 R2. क्लियर? लेंथ ऑफ द सेम आर्क मींस वो सेम रहेगा. L सेम रहेगा. थीटा 1. So what is the answer of L from here? L is theta 1 into R1. What is the answer of L here? Theta 2 into R2. Clear? So L is equal to theta 1. Theta 1 is pi by 3 into R1. ठीक है. Theta 1 is pi by 3 into R1. So L is equal to theta 2 is 5 pi by 12 into R2. Call it equation number first, call it equation number second. क्लास फाइंड आउट क्या करना है? R1 is to R2 फाइंड आउट करना है. ये है टारगेट. ठीक है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. सी क्लास दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? सेम है. दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? सेम मींस इक्वल है. मैथमेटिक्स सेज इफ लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी? इक्वल. फर्स्ट की राइट साइड क्या है? पाई बाई 3 इंटू R1 शुड बी इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू क्या आएगा? R2. क्लियर? सो R1 R2 को नीचे ले आओ इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12. 3 डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में आएगा. पाई न्यूमिनेटर में है, सेकेंड राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आएगा. सो पाई एंड पाई दे विल कैंसिल आउट. 3 1 3 4. सो R1 is to R2 is equal to कितना आ गया? 5 by 4 means 5 is to 4.
दोनों सर्कल्स के रेडियाई की रेशियो दैट इज इक्वल टू 5:4. Any difficulty class? Anything you want to ask regarding this question? Clear? Should I move to the next question, next exercise? Clear? Chaliye, let us move to the next exercise. Next exercise is very simple. Only try to understand the concept. This exercise basically you have done in the 10th standard also. Okay. Clear? In question number 1 to 5, question number 1 to question number 5. Okay. Clear? Find the value of other 5 t ratios. Find the value of other 5 t ratios. डिक्टो ये आपने किया हुआ इन द 10th स्टैंडर्ड. ठीक है. सो क्लास फर्स्ट इज cos x is equal to -1/2. Cos x is equal to -1/2, where x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. क्लास ध्यान से समझेंगे. ठीक है. क्लियर. सो cos x is equal to -1/2. याद करो मैंने इन द 10th स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला बताया था. याद आया कुछ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बताया था क्लास. सो फर्स्ट इज sin थीटा, देन cos थीटा, देन tan थीटा, देन tan के अपोजिट क्या आएगा? cot थीटा, sec थीटा, देन cosec थीटा. क्लास ऊपर से नीचे आओगे. sin थीटा क्या होगा? p/h दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. tan थीटा p/b दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. सो cot थीटा फॉर दीस थ्री रेशियोज एरो ऊपर की तरफ है. cot थीटा इज इक्वल टू b/p. sec थीटा इज इक्वल टू h/b मींस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस. cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. आई थिंक याद आया कुछ क्लास? चलो. यस सर. किया था क्लास यहाँ पे. नाउ क्लास सिचुएशन इज दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ध्यान से समझना. एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे. टुडे एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे हो आप. आज कहाँ पे हो क्लास? यहाँ पे. सो दिस इज द ट्राइंगल. सपोज दिस इज एक्स. ठीक है. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. सपोज दिस इज ओ ए एंड दिस इज पी. समझ में आ गया? cos x is equal to -1/2. cos x कैसे होता है क्लास? cos होता है b/h is equal to -1/2. क्लियर? सो क्लास मैंने बताया था 10th स्टैंडर्ड में, एंगल के सामने ऑलवेज क्या आता है? परपेंडिकुलर. मींस AP क्या होगी? परपेंडिकुलर. क्लियर? 90 के सामने ऑलवेज क्या आएगा? 90 के सामने ऑलवेज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. रेस्ट आउटसाइड क्या होगी? यस. ये बताया था मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में. इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर, इन फ्रंट ऑफ 90 हाइपोटेन्यूज. जो बच गया वो क्या होगा? बेस. सो टुडे cos x किसके इक्वल है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? -1. हाइपोटेन्यूज इज 2. क्लियर? लगाओ पीजीटी एंड कैलकुलेट द थर्ड साइड. कैलकुलेट करो. 2 स्क्वायर इज 4. माइनस करोगे तो कितना आएगा? √3. सो दिस साइड इज √3. क्लियर? कैलकुलेट कर लोगे पीजीटी लगा के. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. सो क्लास आफ्टर डूइंग दैट ये साइड आपकी कितनी निकलेगी? √3. बट ये आ कहां पे रहे हो आप? नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहे हो. नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस अपने से लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस. नीचे आ रहे हो. ठीक है. तो ये साइड कितनी आएगी? √3 आएगी बिकॉज एक्स एक्सिस के बिलो हो आप तो माइनस आ जाएगा. ठीक है. अब बाकी सारी टी रेशियो निकालनी है. sin x इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. cos निकल गया.
tan x is equal to perpendicular by base, then cot x is equal to base by perpendicular, then sec x is equal to, sec किसके इक्वल होता है क्लास, h by b, ठीक है. then comes cosec x is equal to h by p, करेंगे सारी कैलकुलेट, ठीक है, h by p. so sin p by h, p is minus under root 3, h is 2, clear. then comes tan is p by b. what is p? P is minus under root 3 by b is minus 1. so this is minus and minus cancel out, under root 3. then cot x, cot tan is this is root 3 by 1. so cot x क्या होगा क्लास, cot tan का एंटी होगा 1 by under root 3. sec x is equal to h by b, h is 2, b is minus 1. so this is minus 2 by 1. sec जो होगा that is the reciprocal of cosec. cosec जो होगा वो sin का reciprocal होगा. cosec का आंसर क्या आएगा, 2 by minus under root 3, that is minus 2 by under root 3. समझ में आया क्लास? any difficulty, any doubt? ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि you are in which quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, लाइक दैट. क्लियर? लेट अस, बाकी 5 क्वेश्चन डिटो सेम है, अगले वाले क्वेश्चंस करते हैं. so next is sin x is equal to 3 by 5. sin x is equal to 3 by 5 where x lies in the second quadrant. x lies in the second quadrant. so पहले फिगर बनाएंगे क्लासेस की. clear? this is x positive value, this is x dash means negative value, positive value y dash means negative value. so today you are in second quadrant. यहाँ पे हो आप आज, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है. so ट्रायंगल यहाँ पे होगी आपकी. सपोज दिस इज x, ठीक है, o a p. so this is 90. in front of 90 क्या आएगा क्लास, हाइपोटेन्यूज, ठीक है. in front of एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर. so लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस. sin x is equal to 3 by 5. sin क्या होता है क्लास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मींस परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज इज 5. so perpendicular is 3, hypotenuse is 5. so class, any idea this side is equal to, who will tell me? Sara? 4. What? So 4. This side is 4. 4. Agree? This side is, ठीक है बच्चे? No. Yes, wrong. 5 square is 25, 3 square is 9. 25 minus 9 is 16. 16 is 4 square. ये 4 ही आएगी. But क्लास आप x एक्सिस के कहां पे हो, टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस. तो ये ध्यान में रखना है, माइनस अपने से लगाना है क्लास. क्लियर? बिकॉज किस तरफ हो, सी यहां वैल्यू होगी तो क्या आएगी, पॉजिटिव. यहां वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, इफ इट इज 4 तो आपको क्या लेना पड़ेगा उसको, -4. यहां वैल्यू होगी क्लास बिलो x एक्सिस, सपोज 3 वैल्यू है तो उसको -3 लेना पड़ेगा बिकॉज यू आर बिलो द x एक्सिस. समझ में आया ये माइनस क्यों आया क्लास? क्लियर? चलिए नाउ बाकी सारी टी रेशियो कैलकुलेट करनी है. सो cos x इज इक्वल टू b by h, tan x इज इक्वल टू p by b, cot x इज इक्वल टू b by p, then sec x is equal to cosec x is equal to sec x is equal to h by b and this is h by p. let us calculate करते हैं. so class cos x, cos is b by h, b is -4, h is 5, tan x is p by b, that is 3 by -4 can be written as -3 by 4. cot x, cot tan का रेसिप्रोकल होगा that is -4 by 3. sec cos का रेसिप्रोकल होगा that is -5 by 4. cosec sin का रेसिप्रोकल होगा, sin 3 by 5 है, cosec क्या होगा 5 by
3. सो बेसिकली क्लास आप 3 ही कैलकुलेट करते हो. कॉट tan का एंटी, सेक कॉस -4/5 है तो सेक क्या हुआ 5/-4. साइन 3/5 है तो कोसेक क्या हुआ 5/3. एनी डाउट्स क्लास? एनीथिंग यू वांट टू से? No, sir. ठीक है क्लास. No, sir. So let us move to the next. So let us move to the next question class. Tan x is equal to -5/12. Tan x is equal to -5/12 and x lies in the second quadrant. Second quadrant. ठीक है. So class पहले बनाएंगे इसकी डायग्राम. You are in the second quadrant. यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x dash. Here it is the positive value of x, negative value of x. Positive value of y, negative value of y. So tan क्या होता है क्लास? Perpendicular by base. That means perpendicular -5 है, base कितना है? That is 12. Second quadrant situation is like this. This is x. ठीक. So suppose this is O, A and this is P. In front of angle always क्या आएगा? Perpendicular. In front of 90 always क्या आएगा? Hypotenuse. Rest outside क्या आएगी? Base आएगी. Clear class? So tan is perpendicular. Perpendicular is -5 and base is कितना आएगा? That is 12. 12 means -12 आएगा. ठीक है. Clear? -12. Class C. Tan x is equal to -5/12. ठीक है. Is equal to perpendicular by base. Perpendicular कहाँ जा रहा है क्लास? क्लास ध्यान से सुनना मुझे. Perpendicular कहाँ पे है? Towards this side. That means positive y axis की तरफ जा रहा है perpendicular. Means perpendicular को क्या लेना पड़ेगा? Positive. Still negative है तो negative किसके साथ आएगा क्लास? Base के साथ आएगा. Because base किस तरफ आ रहा है? Towards the negative axis. That means base कितना आएगा? -12. Perpendicular -5 नहीं आएगा क्लास. Because आप किस तरफ चल रहे हो? Towards the positive y axis. ये +5 हो जाएगा. Am I clear class about this? Yes, sir. So, sir. Yes, please. Sir, hypotenuse will be negative or positive? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव. बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ये दोनों नेगेटिव भी होंगे स्टिल द हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर क्या आ जाएगा? स्क्वायर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव. सो ओ पी आपका ऑलवेज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज वो स्क्वायर करके निकालते हैं एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज का क्या आना है? करके देख लो. 5 स्क्वायर इज 25. 13. माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा? That is 25 plus 144. 144. 169. 13. 30. Clear? So hypotenuse is sure कि वो always क्या आएगा? Positive आएगा. Clear? So if this side पे आओगे माइनस आ जाएगा. ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. अब रेस्ट ऑफ द टी रेशियो निकालनी क्लास. सो फाइंड आउट करेंगे. sin x, cos x, tan दिया हुआ है, cot x, then comes sec x, then comes cosec x. अब मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको. Sin is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 5, hypotenuse is 30. Cos is b by h. b is -12, h is 30. ठीक है. Cot x is the reciprocal of tan x. तो क्या आएगा? -12/5. Sec cos का रेसिप्रोकल होगा. That is -13/12. cosec sin का रेसिप्रोकल होगा. That is 13/5. Any thing you want to ask? Clear? ठीक है. Should I give one question to you to solve right now? करोगे अभी solve class? Class, should I give one question for you? Hint मैं देता हूँ. कॉपी पे निकालो जल्दी से. Find the value of 5 t ratios. Cot x is equal to 3/4, where x lies in the third quadrant. X lies in the third quadrant. Situation is like this class. यहाँ पे आ जाए आपका x third quadrant है. So this is x O A P. Cot क्या होता है क्लास? Cot is b by p. b by p. So base कितना आएगा?
इन फ्रंट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो ये साइड क्या आएगी, बेस। सो बेस कितना आ गया 3। नाउ सी क्लास, अगेन आप किस तरफ आ रहे हो क्लास, टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो 3 नहीं आएगा, दिस इज -3। परपेंडिकुलर इज 4, परपेंडिकुलर 4 नहीं आएगा क्लास। वाई एक्सिस में कहां जा रहे हो, टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहे हो। सो दिस इज -4। कैलकुलेट करो ये वाली साइड एंड देन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द थ्री रेशियोज। जल्दी से कैलकुलेट करो एंड टेल मी द आंसर ऑफ sin x। 2 minutes class, cos x, then comes tan x, Hypotenuse is 5. yes बच्चे, Hypotenuse is 5. sure, Yes, 5, sir. Yes, sir. hypotenuse is 5, good, ये ठीक है। Yes, sir. जल्दी से कैलकुलेट करो, Sin शाबाश, x fast। is minus Sin 4 by is 5. -4/5. sin x is -4/5. हाँ -4/5, ये ठीक है। cos Cos x x is minus Minus 3/5. 3/5. -3/5, 5. this is also okay। tan x 3 by 4/3. अपोजिट कर लो, 4/3. 4/3. 4, 4/3. this is okay। sec x Sec -5/3. -5/3, good। cosec x Cosec x Minus 5/4. Minus 5/4. -5/4, 4. clear? any difficulty class, any doubt from your side? No, sir. ठीक है, I think थोड़ा बहुत समझ में आ गया because you have calculated, so that means understood. Now class, always a small part I will give you as a homework, but you are supposed to solve in the class। 5-6 questions मैं solve करूंगा and after that a small part जैसे अभी आपने जल्दी से निकाला, clear? Now class, one thing I want to say, ठीक है, next lecture is very important। पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर में बेस, ठीक है। सो इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिसने आज क्लास नहीं भी अटेंड की, सो प्लीज अटेंड माय नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री पूरी उसी पे बेस्ड है, क्लियर? समझ में आ गया? एंड दैट इज ट्विस्टेड वन, रेफरेंस बुक से समझ नहीं आता क्लास, क्लियर? ठीक है, वहीं पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है। दिस आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। उसी टॉपिक पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, रेस्ट आगे इजी है, क्लियर? सो दैट टॉपिक, उसके बाद वही टॉपिक आई एम सपोज टू यूटिलाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है? सो प्लीज नेक्स्ट क्लास अटेंड जरूर करना, ठीक है? एंड टुडे आई थिंक 19 आर, वी आर 19, स्टिल 27 है, 8 गर्ल्स दे आर एब्सेंट, might be 8 girls they are absent, so please convey my message to them। so next lecture is very very important। कैसे मूव करना है, कैसे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, क्लियर? समझ में आ गया? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट फ्यू मिनट्स में लेक्चर स्टॉप कर लिया यहाँ पे, ठीक है? सो आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक, सो प्लीज अटेंड माय क्लास, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? so after the class now I am send, after this I will send you one feedback form, please fill it correct to your knowledge and immediately बच्चे क्या करना है, all 19 of you are supposed to submit। anything you want to say class, or should I end the meeting? clear? so Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. okay, Thank God you, bless sir. you, God bless you।